Yeah, Dhruv sir. Hello, Dhruv sir. हाँ सर. I'll require a help just to point out the students, like उनको unmute करने के लिए. I'll be asking some questions. Sure. Yeah. Yes sir. Okay. Good evening, everyone. I hope my voice is clear to you. If yes, just reply me in the chat box. Thank you. Okay. Before starting the lecture, today we'll be starting with the physiography of Brazil. But in the last lecture, we completed physiography of India. If you remember, we learned about 5 physical divisions of India, right? Okay. So I'll be asking you some questions regarding that 5 physical divisions. You need to answer. Dhruv sir will unmute you and you need to answer. Dhruv sir, Yes sir. sir, you can like unmute randomly. मतलब कोई भी student को unmute करो, मैं question पूछ लेता हूँ उनको. Yes आपके sir. choice. Just a second sir. My system has hanged. Just a second. Hi, it's okay now. All right sir. Yep. We will go with Tirtha from Chembur. Tirtha from Chembur. Tirtha from Chembur, right? Tirtha, Yes. can you hear me? Tirtha, can you hear me? Good evening. Okay. My question is Tirtha, लक्षद्वीप में कौन सा आइलैंड्स मिलता है? Which type of islands are found in Lakshadweep? Correct, Atoll Island. Right answer. Nice, Tirtha. Thank you. You can mute yourself. Sir, next student. All right sir. The next student would be Adarsh from JB Nagar. Adarsh from JB Nagar. Dhruv sir, next student. Yes sir. Adarsh from JB Nagar. Am I audible sir? Yes, sir. Yeah. It's Adarsh from DN Nagar. Adarsh. Can you hear me, Adarsh? Hello, Adarsh. Good evening, Adarsh. Can you hear me? Adarsh has been unmuted, sir. But he isn't unmuting himself. Okay. Adarsh, right? So, sir, Sir, we can anyone go. who doesn't answer, should we put the person out of the lecture? No. I'll be like sending a message to their heads and I'll be giving a punishment for them. Okay, sir, no problem. Yeah. Adarsh, right? Okay. Yes, sir, Adarsh from DN Nagar. Okay. Sir, next student. Sir, next student would be Rishit from Ghatkopar. Rishit from Ghatkopar. Yes, sir. Okay. Rishit, can you hear me? Good evening, Rishit. Rishit beta, good evening. Rishit doesn't want to answer, I think so. He has unmuted himself, but he isn't answering. I don't know why. Okay, so we have Adarsh and Rishit. Sir, Rishit has messaged. He's saying he doesn't have a speaker. Okay, so we will pass on to someone else then. Yes, sir. We can go to Bhumi Rao from JB Nagar. Yes, Bhumi Rao. Bhumi Rao Okay. from JB Nagar. Bhumi Rao, can you hear me? Good evening. Bhumi Rao. I think she's left the meeting. Okay. I cannot see her. No, I can see her, sir. Wait. Yeah. Yes, sir, she's there.
Yeah, Bhumi Rao, can you hear me? Yes, Good sir. evening. Good evening, sir. Bhubi, my question is, Yes, sir. uh, if you talk about active volcano in Yeah. India, on which island this active volcano is located? In Barren Island. Barren Island. Okay, and this Yeah. island is in which main island? In Andaman. Andaman and Nicobar. Yeah. Correct, Bhubi. Thank you. Welcome, sir. Yeah. All right, good job. Last Bhumi. student. Last student. Last unlucky student would be would be Palak Gala from Vikroli. Okay. Hello, Palak sir. Gala. Yeah. Hi, Palak. Hi, good evening, sir. The question is, which is the oldest fold mountain? Which is the oldest fold mountain? Yes, Palak? So I can't get the answer. Okay. The answer is Aravali. Aravali is the oldest fold mountain. Okay, sir. This is the answer. It's there in Yeah. the textbook. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. No problem. Acha. So we need to read the textbook carefully. Okay. We have to read the textbook like 1 or 2 times because objectives can be asked. No, Trans Himalaya is not the oldest. The Himalaya is the young fold mountain. If you read the textbook carefully, Aravali is the oldest fold mountain. Okay, so please read the textbook carefully because objectives कहाँ से भी पूछेंगे and अपना जो paper pattern है geography का उसमें objective base ज़्यादा है. So you need to rely on objectives. So textbook thoroughly पढ़ना next time. Okay. Now we'll be continuing with the chapter. अभी physiography of India किया है, physical divisions of Brazil चालू करेंगे. So hold for a second. I'll share a screen with you. चलो. Doubts will be cleared at the end of the lecture, so please hold your doubts. Okay, today we'll be starting with physical divisions of Brazil. Now, India का 5 physical division था, वैसे Brazil का भी 5 physical divisions है. ठीक है, दोनों में 5-5 है. ठीक है. The first physical division is the plains. जैसा इंडिया में नॉर्थ इंडियन प्लेन्स था, वैसे ब्राजील में सिर्फ प्लेन्स है. द प्लेन्स, नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ नहीं है. द प्लेन्स. जैसे इंडिया में पेनिनसुला प्लेटो था, वैसे ब्राजील में हाईलैंड्स है. हाईलैंड्स इज अगेन अ फैंसी वर्ड फॉर प्लेटोस. प्लेटोस मतलब हाईलैंड्स. नेक्स्ट वन है, जैसा इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स था, वैसे ब्राजील में एस्कार्पमेंट है. ठीक है. नेक्स्ट वन है, जैसा इंडिया का कोस्टल प्लेन्स था, वैसे ही ब्राजील में भी कोस्टल प्लेन्स हैं. एंड द लास्ट वन है, जैसे इंडिया में आइलैंड्स थे और इंडिया के आजू बाजू में आइलैंड्स थे, वैसे ही ब्राजील के यहाँ पे भी आइलैंड्स हैं. So you will be learning 5 physical divisions. That is, one is plains, second one is highlands, third one is escarpment, fourth one is coastal, and the fifth one is islands. Let us start with the first one, that is highlands. Highlands का मतलब ही plateau है. ठीक है. Highlands मतलब elevated physiography. Now let us talk about highlands. अभी right hand side में आपको जो map दिख रहा है, ये map same map आपके textbook में है. ठीक है. वही map मैंने लिया है. तो with the help of this map, we'll be learning about highlands. Okay, now if we talk about highlands, the southern Brazil is occupied by extensive plateau. Now we'll see the map properly. अभी मैं map का थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि question एक आता है board exam में 4 marks के लिए, map reading. You have to read the map and answer the question. लेकिन map read करने को भी आना चाहिए. ठीक है. अभी अगर आप map में देखेंगे तो there are 3 colors. Index में भी अगर देखेंगे तो majorly it is brown, yellow and green. फिर green के shades है.
अभी इसमें ना एक ध्यान में रखना, माउंटेन्स होंगे ना, माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स, तो उसको ब्राउन शेड रहेगा हमेशा, ठीक है। द फर्स्ट थिंग, माउंटेन्स रहेगा तो उसको ब्राउन शेड रहेगा। अगर वो येलो कलर रहेगा, येलो शेड रहेगा, देन इट इज प्लेटोस। एंड इफ इट इज ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, देन इट इज प्लेन्स, ठीक है। वन मोर टाइम, ब्राउन कलर हमेशा मैप में इट विल रिप्रेजेंट माउंटेन्स, येलो इट विल रिप्रेजेंट प्लेटोस, एंड ग्रीन प्लेन्स। तो अगर आप देखेंगे, देखो ना, साउथ में आपको बहुत येलोइश पार्ट दिख रहा है, येलोइश पैचेस दिख रहे हैं। वो येलोइश पैचेस क्या है? दे आर हाईलैंड्स, ठीक है। दे आर व्हाट? हाईलैंड्स। आपको साउथ और साउथ ईस्ट में दिखेगा, ओके। सो मेनली, मेजरली अगर आप ब्राजील का मैप देखें ना, इट इज मेनली कवर्ड बाय प्लेटोस। सम ऑफ देम आर इन नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर इन साउथ एंड सेंट्रल, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाईलैंड्स. Now it is differently described as Brazilian highlands. If I see, this is called as Brazilian highland or Brazilian shield बोलते हैं इसको, ओके। इसको दो नाम है, Brazilian highland, Brazilian shield, और एक नाम है Brazilian plateau, ठीक है। नेक्स्ट इज Brazilian and Guyana highlands, ठीक है, forms the core of South American continent. एक तो नीचे है साउथ में ब्राजीलियन हाईलैंड, और अभी सर गयाना हाईलैंड्स कहाँ पे? गयाना हाईलैंड्स अगर आप नॉर्थ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, कैन यू सी? सो ये जो दो हाईलैंड्स है ना, दे फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कोर मतलब क्या है? पूरा जो क्रस्ट है, जो प्लेट है, मालूम है ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जरा 7 टेक्टोनिक प्लेट्स, तो उसमें जो ये एक प्लेट है ना, इन दोनों हाईलैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो कोर है, ये दो हाईलैंड्स है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना बिल्डिंग का पिलर, अगर बिल्डिंग का पिलर लेंगे तो पिलर कोर होता है, पिलर टूट गया तो बिल्डिंग गिर गया, वैसे ये दो हाईलैंड्स कैसे? दे आर द कोर ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट गयाना हाईलैंड्स, गयाना हाईलैंड्स मेनली स्टार्ट फ्रॉम अ कंट्री कॉल्ड वेनेजुएला। याद है, नेबरिंग कंट्री पड़ा था, देखो ना वहां पर ऊपर ही, इफ यू सी केयरफुली यू कैन सी वेनेजुएला, गयाना हाईलैंड्स के वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में। वेनेजुएला से ये गयाना हाईलैंड्स चालू होता है एंड इट एक्सटेंड्स टिल फ्रेंच गुआना। अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में, ईस्ट साइड में आपको और एक कंट्री दिखेगा, फ्रेंच गुआना। सो अगर पूछा गयाना आइलैंड्स एक्सटेंड्स फ्रॉम विच कंट्री टू विच कंट्री, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेनेजुएला, देन इट गोज थ्रू ब्राजील एंड देन इट एंड्स एट फ्रेंच गुआना, ठीक है। ये था उसका एक्सटेंशन। लेकिन अपने को तो ब्राजील के बारे में पढ़ना है, तो ब्राजील में कहां पर आता है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इन ब्राजील it extends in 3 states. मतलब वो 3 स्टेट को कवर करता है. The 3 states are, the first one is Roraima, the second one is Amapa, and the last one is Para. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद कर सकते हैं. शॉर्ट फॉर्म इसका है RAP, रैप. R for Roraima, A for Amapa, P for Para. ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं. Which two highlands forms the core of Brazil? It is Guyana Highlands and Brazilian Highlands. If you talk about Guyana Highland, it extends from which country to which country? It extends from Venezuela to French Guiana. अच्छा, ब्राजील में कहां पर आता है ये? In Brazil, it comes in 3 states or it extends in 3 states, that is Roraima, Amapa and Para. Okay, if you talk about Guyana Highlands, थोड़ा मैं फैक्ट भी बता देता हूँ. Guyana Highlands is 1.7 billion years old. ठीक है, अभी अभी नहीं बना. इट इज 1.7 बिलियन इयर्स ओल्ड इफ यू टॉक अबाउट गयाना हाईलैंड. सेम विद ब्राजीलियन हाईलैंड. ओके, और कौन सा रॉक मिलता है यहाँ पे? सेम बसाल्ट रॉक, बिकॉज ये दोनों वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है. ओके, द लोएस्ट पार्ट ऑफ गयाना हाईलैंड इज फाउंड इन ब्राजील. ठीक है, कौन सा पार्ट? लोएस्ट पार्ट. द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील इज पिको दे नेब्लिना, विच इज लोकेटेड नियर गयाना हाईलैंड्स. अगर आप देखेंगे ना गयाना हाईलैंड्स के, देखो ना बाजू में एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको मैप में, एक शेडेड ट्रायंगल दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में गयाना हाईलैंड्स का. वहां पे लिखा है देखो, पिको दे नेब्लिना, द हाइट इज 3014, 3014. ठीक है, मतलब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो बड़े बड़े माउंटेन्स है ही नहीं. 3014 इज नथिंग, बिकॉज अपने यहाँ पर इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? K2. व्हाट इज द हाइट? 8681. और इनका क्या है? 3014. याद रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2 एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील इज पिको दे नेब्लिना, which is 3014. Next one is
इफ यू टॉक अबाउट पिको दे नेबलिना, ये इसका हाइट है। ब्राजीलियन हाईलैंड में भी बहुत सारे माउंटेन्स है जिनका हाइट उतना ही है, इट इज अराउंड 2500 2600। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाईलैंड्स लोकेटेड इन ब्राजील, दैट इज ब्राजीलियन शील्ड और गयाना हाईलैंड्स। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द सेम थिंग। Now the region to the east and the south of Brazilian highlands, abhi let us focus down, wo jo dikh raha hai na yellow patch, the region to the east of Brazilian highland and south of Brazilian have an altitude more than 1000 meters. ठीक है, मतलब ईस्ट में उसका हाइट ज्यादा है और साउथ में उसका हाइट ज्यादा है। ठीक है, इसके लिए आप देखेंगे ना ईस्ट और साउथ में आपको ब्राउन पैचेस दिख रहे हैं। कैन यू सी स्मॉल ब्राउन पैचेस ओवर देयर इन द ईस्ट एंड साउथ पार्ट? Why there are brown patches? Because वहां पर हाइट ज्यादा है, elevation is more. ठीक है, but other parts of the altitude is 500 to 1000 मीटर, मतलब बाकी पार्ट में it is 500 to 1000, कहीं कहीं पे 500 है, कहीं कहीं पे 1000 है। बट अगर आप ईस्ट और साउथ में जाएंगे तो the elevation is more than 1000 meters. That's why you can see brown patches over there majorly. The highland is gradually sloping towards north. मतलब ये जो हाईलैंड है ना, इसका जो स्लोप है इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ। सर कैसे पता चला टूवर्ड्स नॉर्थ? बिकॉज हमेशा हाइट ऊपर से नीचे जाता है। तो मेरे को बताओ, इफ आई कंपेयर माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन, सबसे लोवेस्ट कौन सा रहेगा? प्लेन, फिर आएगा प्लेटो, फिर आएगा माउंटेन। तो कैन यू सी येलो से ग्रीन हो रहा है, मतलब साउथ में येलो है और नॉर्थ में जाएंगे, सी द मैप प्रॉपर्ली, साउथ में येलो है और ऊपर जा रहे तो ग्रीन हो रहा है। मतलब कैसा है कि हाइट ऊपर से नीचे जा रहा है। That's why it is facing towards north. हमेशा याद रखना जहां पर ग्रीन पैच है वहां पर स्लोप जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। That is from height, ऊपर से नीचे। तो ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड है ना, यहां से अगर आप नॉर्थ जाएंगे तो स्लोप चालू होता है। और कौन सा स्लोप है यहाँ पे? इट इज मोस्टली जेंटल स्लोप। Now the tributaries of Amazon River flowing through this region makes rapids and waterfalls. Everyone know what is waterfall and everyone know what is rapids. Rapids मतलब क्या? There is a part of a river which flows at a great force, rapidly जाता है, इसके लिए उसको बोलते हैं rapids. Towards the north and the slope is steep but not abrupt. क्या बोला उन्हें? The slope is steep but not abrupt. Abrupt बोलेगा तो फटाक से steep नहीं होता है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा steep होने के टाइम पे, लेकिन ऐसा फटाक से steep नहीं होता है। जैसा वाटरफॉल में कैसा है कि पानी फटाक से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ता है कि इस यहाँ पर का जो स्टीप है वो एब्रप्ट है, मतलब आगे जाएंगे तो सीधा गिर जाएंगे। बट इधर का जो स्लोप है ना वो स्टीप नहीं है, सॉरी इधर का स्लोप जो है वो स्टीप है बट एब्रप्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, अ नंबर ऑफ रिवर्स टेक्स ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड टू मीट अटलांटिक ओशन। One of the best example is Sao Francisco. Sao Francisco river starts from Brazilian highland and it flows into Atlantic Ocean. जब हम लोग रिवर्स करेंगे ना ब्राजील का तभी आपको पता चलेगा वो। बट अभी के लिए इतना याद रखना, Sao Francisco is a river which flows from Brazilian highland and flows into Atlantic Ocean. Next is some major rivers like Uruguay, Paraguay and Parana originates from southern slope of highlands. अभी ये ऊपर नहीं जा रहा है, दिस गोज टूवर्ड्स अर्जेंटीना, मतलब ये चालू होता है ब्राजीलियन आइलैंड से बट ये साउथ में फ्लो होता है। कौन से 3 रिवर्स? पैराग्वे, पराना एंड उरुग्वे। ठीक है, तो वन मोर टाइम, कौन सा रिवर नॉर्थ में जाता है? साउ फ्रांसिस्को। कहां से? ब्राजीलियन हाईलैंड से। और कौन से 3 रिवर ब्राजीलियन हाईलैंड से चालू होते हैं सदर्न स्लोप से बट जाते हैं अर्जेंटीना में? द 3 रिवर्स आर पैराग्वे, उरुग्वे एंड पराना। तो ये था पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड। एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आइदर इन शॉर्ट नोट्स और इन ब्रीफ। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था ब्राजीलियन हाईलैंड का? इट इज वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्लेटो, ब्राजीलियन हाईलैंड। देयर आर 2 हाईलैंड्स, वन इज गयाना हाईलैंड्स इन नॉर्थ एंड ब्राजीलियन हाईलैंड इन साउथ। दे बोथ फॉर्म द कोर ऑफ which continent? South American continent. If you talk about Guyana Highlands starts from a country called Venezuela and extends till French Guiana. ठीक है, ब्राजील में कौन से 3 स्टेट्स में मिलते हैं गयाना हाईलैंड्स? रोराइमा, अमापा एंड पारा। अच्छा, which part of Guyana Highland is located in Brazil? It is the lower part.
of Guiana Highlands located in Brazil. Which is the highest peak located over here? That is Pico de Neblina. और उसका हाइट क्या है? 3014. ओके, तो ये जो मेजर पॉइंट्स है हमने रिकैप कर लिया यहाँ पे. सो इफ दिस वाज अबाउट हाईलैंड्स. अभी ये पहला फिजियोग्राफी हो गया हाईलैंड्स का. अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग द ग्रेट एस्कार्पमेंट. जैसा मैंने बोला ना, अपने यहाँ पर कैसे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है, वैसे यहाँ पर ये ग्रेट एस्कार्पमेंट है. एस्कार्पमेंट का मतलब है माउंटेन विच इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट ब्रोकन. मतलब एक वॉल जैसा, अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एस्कार्पमेंट. Simple, a wall-like structure is called as escarpment. Now, if you talk about escarpment, वो दिखने में छोटा है, it is small, but it has a great influence on the climatic condition and the physiographic condition of Brazil. Again, और एक बार मैं बोल रहा हूँ, the size of this escarpment is small compared to the country, but it has a great influence on climatic condition as well as the physiographic condition of Brazil. ठीक है. अभी ये ग्रेट एस्कार्पमेंट ब्राजील में कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ओवर हियर, साउथ ईस्ट. कैन यू सी दैट लाइन? दैट इज ग्रेट एस्कार्पमेंट. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ग्रेट एस्कार्पमेंट, ग्रेट एस्कार्पमेंट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ हाईलैंड्स. मतलब हाईलैंड्स यहां पर आता है, तो हाईलैंड के ईस्ट में आता है ग्रेट एस्कार्पमेंट. अच्छा, ये ग्रेट एस्कार्पमेंट किस दो फिजियोग्राफी को डिवाइड करता है? डिवाइड्स द हाईलैंड्स एंड द कोस्ट ऑफ ब्राजील. अगर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ग्रेट एस्कार्पमेंट डिवाइड्स व्हिच टू फिजियोग्राफिक डिवीजन? इट इज हाईलैंड्स एंड द कोस्ट ऑफ ब्राजील. मतलब दोनों के बीच में आता है. ठीक है. उसके एस्कार्पमेंट के ईस्ट साइड में ब्राजील कोस्ट आता है और वेस्ट साइड में हाईलैंड्स आता है. अच्छा, इन दिस रीजन the altitude of great escarpment is 790 meters, 790. याद रखना, ये fill in the blanks और objectives में पूछते हैं. What is the altitude or elevation of great escarpment? It is 790 meters. Next one is, in some regions the height decreases. ठीक है. अभी सबसे ज्यादा steep slope, if you talk about steep slope in escarpment, is between two places. One is Sao Paulo and the second one is Porto Alegre. अच्छा, ये दोनों के बीच में another slope is steep. Sao Paulo is a state. मैंने बोला था ना, ब्राजील में 26 states है, उसमें से एक state है Sao Paulo. Porto Alegre is a capital of a state, and the name of that state is Rio Grande do Sul. Again, the name of the state is Rio Grande do Sul. उसमें ये आता है city Porto Alegre. Porto Alegre is the capital of Rio Grande do Sul. तो इन दोनों के बीच में the slope is steep. Okay. Now, next one is, it has a great importance because it affects the climatic condition of Brazil. अब ये क्यों, ये भी बताता हूँ. याद है हमने 9th स्टैंडर्ड में ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ा था? आपको याद रहेगा. ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब क्या है? Rainfall occurs because of the obstruction of a mountain. तो यहां पर ये एस्कार्पमेंट है ना, ये क्या करता है मालूम है क्या? अटलांटिक ओशन से ना एक विंड्स आता है जिसका नाम है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. कैन यू सी उधर लिखा उसका शॉर्ट फॉर्म SETW. अभी ये जो विंड्स आता है ना, ये विंड्स अटलांटिक ओशन से आता है. ओके. अभी ये विंड्स अगर अटलांटिक ओशन से आएंगे तो इसमें मॉइस्चर होगा, तो ये बहुत सारा मॉइस्चर लेके आ रहा है. लेकिन ये जो मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर वाला जो क्लाउड्स है, इसको है ना आगे जाने को कौन नहीं दे रहा है? कौन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है? द ग्रेट एस्कार्पमेंट. ये एस्कार्पमेंट क्या करता है ना, उसको हाईलैंड्स तक जाने के लिए रोक देता है. और क्या होता है मानेगा, बिकॉज ऑफ द स्टॉपिंग ऑफ दिस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दिस क्लाउड्स बाय दिस एस्कार्पमेंट, इवेंचुअली क्या होता है, वहां पर ही रेनफॉल हो जाता है. इसके लिए पूरा बारिश एस्कार्पमेंट को मिलता है. एंड द सेंट्रल पार्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, वहां पर रेनफॉल होता नहीं. याद है हमने 9th में पढ़ा था रेन शैडो रीजन. रेन शैडो मतलब क्या है? वहां पर बारिश होता ही नहीं है, बिकॉज क्लाउड्स वहां पर पहुंचता ही नहीं, या तो बहुत कम बारिश होता है. तो ब्राजील का भी एक रेन शैडो रीजन है जो नॉर्थ ईस्ट में है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल. दिख रहा है आपको ऊपर मैंने दिखाया, वो होता है ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल. ड्रॉट मतलब जब बारिश नहीं होता है, तो ये जो एरिया है उसको बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल. ये ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल के बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. ठीक है, क्लाइमेट में.
सो और एक बार रिकैप कर लेते हैं एस्कार्पमेंट के बारे में. इफ यू टॉक अबाउट एस्कार्पमेंट, दो द साइज इज स्मॉल बट इट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफिक कंडीशन ऑफ ब्राजील. सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इट डिमार्केट्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड, मतलब इधर हाईलैंड खत्म होता है, एंड इट डिवाइड्स हाईलैंड्स एंड कोस्टल्स, मतलब कोस्टल और हाईलैंड के बीच में एक डिवीजन जैसा है. ओके. नेक्स्ट हमने पढ़ा उसका एलिवेशन. इफ यू टॉक अबाउट एस्कार्पमेंट, उसका हाइट इज 7990 meters. नेक्स्ट थिंग इज देयर आर टू प्लेसेस जिसके बीच में इसका जो हाइट है वो स्टीप है, या जो स्लोप है वो जो स्टीप है. द टू प्लेसेस आर साओ पाउलो इन द नॉर्थ एंड पोर्टो एलग्रे इन साउथ. पोर्टो एलग्रे द कैपिटल ऑफ रियो ग्रांडे दो सुल. ठीक है. इट ऑब्स्ट्रक्ट्स इंपॉर्टेंट विंड, दैट इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो एक्चुअली ब्राजील में रेनफॉल लेके आता है. तो ये विंड्स को वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसके वजह से बहुत सारे एरिया में बारिश होता नहीं है. और जो एरिया में बारिश नहीं हो रहा है, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट, उसको बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल. ठीक है. सो वी लर्न ब्राजीलियन हाईलैंड्स. ठीक है. एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द ग्रेट एस्कार्पमेंट. Okay. So this were the two physiography which we did. So you have any doubts regarding this two physiography? Sir, where does Rio in Brazil comes? There are three Rios. One is in north, one is in south, and one is in east. The height of K2 peak is 8681 meters. Okay, the capital of Brazil, मैंने chapter number 2 में बताया, the capital of Brazil is Brasilia. So please go through chapter number 2. Initially it was Rio de Janeiro, फिर बाद में capital change होके ब्रासीलिया हो गया. Name of the highest peak of India, अभी मैंने बोला, आपने सुना नहीं है. K2 peak, K2 peak. Yeah, it is called as escarpment also and great escarpment also. Abrupt बोलेगा तो कैसा है कि sudden change जब होता है ना, उसको बोलते हैं abrupt. When change happens suddenly, it is called as abrupt. आप चलते जा रहे हो और बीच में खड्डा आ गया और आप गिर गए, उसको बोलते हैं abrupt. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया. No, in Brazil they don't study about India. I don't think so. Maldives is located, or Maldives is located in the southern part of India. मतलब इंडिया के साउथ में आता है, श्रीलंका के बाजू में Maldives. See, the river part will be doing in the Brazilian river, so अभी उसका query आंसर करना जरूरी नहीं है. जब रिवर्स करेंगे ब्राजील का, तभी आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा. Pico de Neblina lies on the border of Brazil and Venezuela. Pico de Neblina lies on the border of Brazil and Venezuela. वो मैप में ना आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील इज पिको दे नेब्लिना. The portion of the test is given in your group. You can go through it. उसका स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है.
K2 is located in Himalayas. आपको जब मैं मैप दिखाऊंगा इंडिया का फिजियोग्राफी वाला तभी हम लोग वो करेंगे. डोंट वरी. K2 कहाँ पे है वो आपको बताएंगे. Yes, kayaking is done in rapids. Demarcation means here it is evident that यहाँ पे highlands खत्म हो रहा है और escarpment चालू हो रहा है. It's like a boundary. Demarcation मतलब a boundary. So a great escarpment acts as a boundary between highlands and coastals. Demarcated मतलब उसका meaning ये है. The height of Pico de Neblina, please write it down. It is 3014 meter. 3014. Dhruv sir. Yes, sir. Sir, I am done.